Hello students, I am teaching you chemistry paper 3, that is the analytical chemistry of SY BSc, and this is semester 4th, and this is our part 2nd lecture of unit 2, that is the instrumental methods 2. In last lecture we are already started the instrumental methods 2, that is unit 2. We have already started. In that, we are already studied the basic concepts of Voltaic cells, then oxidation reduction, then line notation for Voltaic cells. So now we have to study the next topic, that is the potentiometric titration and indicator and reference electrodes. So let's see the next topic. So, reference electrodes. So, what is the reference electrodes? The electrode system whose potential is arbitrarily fixed or exactly known. Such electrodes are known as reference electrodes. So, reference electrodes क्या होते हैं? Whose potential is arbitrarily fixed. फिक्स होता है और एग्जैक्टली नोन होता है उसका. So, such electrodes are known as reference electrode. और उसकी definition we can write. The electrode of constant known potential are called a reference electrode. So constant known potential का electrode का पता हो रहा है हमको, तो उसे हम क्या करते हैं, कहते हैं reference electrode. So example of this is the standard hydrogen electrode, that is the SHE, short form of standard hydrogen electrode, and next is the calomel electrode. So the reference electrodes are example are SHE and calomel electrode. So second is the indicator electrode. So what is the indicator electrode? So opposite to reference electrode. Indicator electrode should be an electrode reversible to hydrogen ions. मतलब हाइड्रोजन आयन जितने हो गए उतना वो डिफरेंट पोटेंशियल्स दिखाएगा, उसको रिप्लेस करेगा. सो जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा वो पोटेंशियल दिखाएगा, मतलब डिपेंड्स अपॉन हाइड्रोजन आयन. रिवर्सिबल होंगे वो, मतलब क्या होगा, रेफरेंस कैसा होगा हमको पता होगा, बट इंडिकेटर हमको हाइड्रोजन आयंस के ऊपर डिपेंड करेगा. सो एग्जांपल ऑफ दिस इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स आर क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड और ग्लास इलेक्ट्रोड. दो इलेक्ट्रोड्स है, क्वीन हाइड्रोन एंड ग्लास इलेक्ट्रोड. सो नेक्स्ट टॉपिक इज द मेन टॉपिक एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस. In potentiometric titrations, the potential of suitable cell is measured as a function of the volume of titrant added to detect the equivalence point of titration. मतलब पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में पोटेंशियल हमको मेजर करना है एज अ फंक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड, मतलब कितना टाइट्रेंट ऐड कर रहे हैं टू डिटेक्ट द इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन. सो उसका इक्विवेलेंस पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए हम उसमें कितना टाइट्रेशन वॉल्यूम टाइट्रेंट ऐड कर रहे हैं. So initially the variation of potential of the cell with addition of titrant will be gradual and the equivalence point will be shown by a large change in potential. मतलब इनिशियली स्टार्टिंग में वेरिएशन होता है पोटेंशियल्स में, एडिशन ऑफ टाइट्रेंट्स में ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं उसमें बहुत सारे. इक्विवेलेंस पॉइंट विल बी लार्ज चेंज इन पोटेंशियल. इक्विवेलेंस पॉइंट भी बहुत बार चेंज होता सकता है because of large change in potential. The potentiometric titration method is widely applicable and provides more accurate data than corresponding method using a indicator. So potentiometric क्या use कब करते हैं widely? Provides a more accurate data than corresponding methods using a indicator. Indicators जब जहाँ पर यूज करते हैं उससे भी उसकी वजह से कभी कभी रिजल्ट रॉन्ग आते हैं या तो थोड़े वीक आते हैं. सो उसके उस जगह पर हम वी कैन यूजिंग अ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस. So example of this potentiometric titration are the neutralization of strong acid HCl by strong base NaOH is studied by a potentiometric titration using a quine hydron and calomel electrodes. So इसका example क्या है potentiometric titration का? Simple, the neutralization of strong acid by strong base. मतलब कोई भी strong acid HCl versus NaOH studied by potentiometric titration using a quine hydron and calomel electrons. Quine hydron या calomel electrodes, these indicator electrodes are we can using in neutralization titration. So that is the potentiometric titration. In short, potentiometric titration क्या होता है? For determining equivalence point, we are adding a volume
ऑफ टाइट्रेंट उसके उस पर डिपेंड करेगा उसका इक्विवेलेंस पॉइंट। फॉर हमें इक्विवेलेंस पॉइंट निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट जितना ऐड करेंगे उस पर डिपेंड होगा पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेंट या पोटेंशियल उसका कितना है। सो फर्स्ट इज द क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सो क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स आर हियर आई एम राइटिंग राइट ऑलरेडी, दैट इज प्लेटिनम, देन उसको वन लाइन वर्टिकल लाइन मतलब फेज चेंज हो रहा है, H2Q मतलब हाइड्रोक्विनोन, Q एंड H प्लस, क्विनोन एंड H प्लस। सो वेयर H2Q क्या यहाँ पर करता है रिप्रेजेंट? हाइड्रोक्विनोन, एंड Q क्या स्टैंड करता है? क्विनोन। सो हाइड्रोक्विनोन एंड क्विनोन एंड H प्लस। सो हियर इज द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। सो इलेक्ट्रोड रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो रिएक्टेंट लेंगे। रिएक्टेंट क्या क्या है यहाँ पर? पहले तो एक क्विनोन आएगा, दैट इज इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्विनोन, देन 2H प्लस, देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा इसका हाइड्रोक्विनोन का। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन ऐड हुआ यहाँ पर, देन ये हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हुआ। वैसे एक एक इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए तो यहाँ पर ऐड हुए, एक एक यहाँ पर ऐड हुआ। सो इट फॉर्मिंग अ हाइड्रोक्विनोन, दैट इज H2Q। सो एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन कोशेंट मतलब Q इज इक्वल टू H2Q, activity of H2Q hydroquinone by activity of quinone, then H plus एंड A स्क्वेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, 2 हाइड्रोजन है इसलिए वो स्क्वेयर हो गया। सो ये हमने पहले भी अप टू द 12th लेवल आपने देखा है। एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो एक्सप्रेशन क्या होगा? E क्वीन हाइड्रोजन इज इक्वल टू E0 minus 2.303 RT by 2F log of, ये क्वेश्चन एज इट इज हमने यहाँ पर लिया, ये यहाँ पर ले लिया। अभी ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया है? ये यू हैव टू ऑलरेडी studied in up to the 12th level or up to the FY level, that is this this formula, this one formula, this formula that is E is equal to E0 minus 2.303 RT by NF log of product by reactant। मतलब ये Q लिया है हमने यहाँ वहां पर प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, लेकिन इन फॉर्म ऑफ कोशेंट मतलब एक्टिविटी चाहिए हमको यहाँ पर। सो वो यहाँ पर क्या लिया हमने? एज इट इज ये यहाँ पर ले लिया कोशेंट Q इज इक्वल टू, सो E0 माइनस 2.303 RT एज इट इज लिया। N क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, N मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, ये यहाँ पर कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। सो ये यहाँ पर 2F हो गया। सो लॉग ऑफ A activity of H2Q by activity of Q A square, activity of A square H plus. So E0 minus 2.303 RT by 2F log of H2Q by quotient activity क्विनोन प्लस, हमने यहाँ पर सिर्फ चेंज किया है, ये हमें सेपरेट लिखना है यहाँ पर, ये यहाँ पर हमने सेपरेट लिया है। सो प्लस यहाँ पर प्लस देन 2.303 RT by 2F log of A square activity by H plus A square। सो ये कैसे क्या यहाँ पर ऊपर लिया हमने log of Q, क्योंकि यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है। अगर हमने यहाँ पर निगेटिव चार्ज याद लाइक यहाँ पर जैसे लिया है वैसे लिया होता, ये निगेटिव चार्ज, सो निगेटिव यहाँ पर निगेटिव ही था, लेकिन वो ऊपर जाने की वजह से निगेटिव निगेटिव क्या हमने किया? पॉजिटिव हो गया। सो यहाँ पर क्या हो गया बाद में? ने E0 प्लस 2.303 RT बाय 2F
A square H plus minus 2.303 RT by 2F log of H2Q activity by Q। मतलब क्या किया है हमने यहाँ पर का ये एज इट इज ये पॉजिटिव वाला यहाँ पर लिया है और निगेटिव वाला हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पर निगेटिव वाला ट्रांसफर कर दिया और यहाँ पर पॉजिटिव वाला ट्रांसफर कर दिया हमने। सो उल्टा किया ऐसी। सो एक डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर दिस EQ in hydron is equal to E0 plus 2.303 RT by 2F H plus activity square minus 2.303 RT by 2F log of H2Q मतलब hydroquinone activity divided by quinone activity. So quinhydrone is an equimolar mixture of quinone and hydroquinone. So यहाँ पर क्विनोहाइड्रोन क्या है? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ क्विनोन एंड हाइड्रोक्विनोन। सोल्युबिलिटी ऑफ बोथ इन प्योर वाटर इज वेरी स्मॉल, और दोनों की भी सोल्युबिलिटी प्योर वाटर में क्या है? वेरी स्मॉल। So thus in an equimolar mixture of two, the amount that dissolve can be assumed to be equal. So दोनों की भी pure water is solubility of water दोनों की very small है। So equimolar mixture of two, amount that dissolve can be assumed to be equal। म्हणून इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं? Amount of dissolve can be equal to 0 हम ले सकते हैं उसका। Therefore with both forming a very dilute solution, सो दोनों भी क्या करेंगे? फॉर्मिंग अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। दोनों के भी सोल्युबिलिटी वाटर में बहुत कम है, इसलिए हमने इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ द टू लिया। सो अमाउंट ऑफ डिजोल्व कैन बी एज्यूम टू बी, हम इक्वल ले सकते हैं उनकी, दोनों की भी इक्वल ही लिया है, मतलब ऐसे ही समझेंगे। सो बोथ फॉर्मिंग अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन of a equal concentration of the two components. For all practical purposes, the activity ratio, that means quinone divided by activity of hydroquinone, can be assumed to be equal to 1। यहाँ पर कितनी लेंगे फिर हम? एज इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों भी वाटर में डिजोल्व नहीं हो रहे, वेरी वेरी लो डिजोल्यूशन है। दिस विल रिड्यूस द सेकेंड टर्म ऑफ द इक्वेशन 1 to 0। सो जो सेकेंड टर्म है अपनी, ये जो सेकेंड टर्म है अपनी, कौन सी? ये वाली सेकेंड टर्म है। ये सेकेंड टर्म ये क्या करेगी फिर? ये 0 हो जाएंगी। सो इक्वेशन में कौन कितना रह जाएगा? क्यू इन हाइड्रोन इज इक्वल टू EQ0 प्लस 2.303 RT by 2F log of A square H plus A square एक्टिविटी। सो वो इतना ही रह जाएगा, इसके आगे का वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने वहां पर इक्वल टू 1 लिया है, हाइड्रोक्विनोन डिवाइड बाय क्विन, वहां पर 1 लिया तो उसका लॉग 0 आएगा, और 0 से पूरी की पूरी वो सेकेंड टर्म डिलीट हो जाएंगी। सो इसकी वजह से रह जाएगा ओनली अप टू द दिस वन। सो E0Q प्लस 2.303 RT F इज इक्वल टू लॉग ऑफ H प्लस एक्टिविटी। सो यहाँ पर का 2 अब हमने फिर से डिलीट कर दिया, या तो रिमूव कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर का ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों भी कैंसल हो गए। सो यहाँ पर क्या आ गया? लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ H प्लस। सो एट 298 केल्विन EQ क्विनहाइड्रोन इज इक्वल टू E0 क्विनहाइड्रोन माइनस 0.05916 pH। ये जो हमने पहले इसमें लिया है हमने। सो E0 क्विनहाइड्रोन इज इक्वल टू 0.699 volt. So EQ anhydrone is equal to 0.699 minus 0.05916 pH. So ये 298 को ये इक्वेशन है। EQ anhydrone 0 Q anhydrone minus 0.05916 pH, बट EQ anhydrone 0 Q anhydrone को प्लस 0.699 वोल्ट हम लेंगे, एज मतलब वो
नोन है इक्विन हाइड्रोजन का, सो वो माइनस 0.0596 pH, ये आपका इक्वेशन आएगा. सो दैट इज द थर्ड इक्वेशन. So construction, the electrode is set up by adding a small quantity of commercially available quinhydron to the experimental solution so as to saturate it. So construction में क्या करना है, the electrode क्या setup करना है, adding a small quantity of available quinhydron to the experimental solution so as to saturate it. This solution is stirred and then an electrode of platinum is introduced for electrical contact. Then ये solution stirred करने के बाद, मतलब क्विनहाइड्रोन लेने के बाद उसमें क्या करना है, स्टर्ड करना है. तो सॉल्यूशन लेने के बाद इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम इंट्रोड्यूस करना है इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट के लिए. द प्लेटिनम स्ट्रिप शुड बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम ग्रेज, मतलब क्लीन होनी चाहिए और कोई भी ग्रेज नहीं होना चाहिए उसमें. सो क्लीन होना चाहिए वो पूरा. इन शॉर्ट, द इलेक्ट्रोड कैन बी कंबाइंड विथ सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड टू फॉर्म द सेल, द पोटेंशियल ऑफ विच कैन बी मेजर्ड. सो इलेक्ट्रोड को क्या है, हम कंबाइंड विथ सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड या सीई के साथ हम फॉर्म करेंगे सेल, एंड देन पोटेंशियल ऑफ विच इट कैन बी मेजर्ड, देन पोटेंशियल हम मेजर करेंगे उसका. सो दैट इज द कंस्ट्रक्शन इन एसिडिक मीडियम. इन एसिडिक मीडियम क्या है, द सेल सेटअप इन द एसिडिक मीडियम क्या है, Hg1 Hg2 Cl2 S solid, then vertical line KCl saturated, then H plus the H2Q मतलब हाइड्रोक्विनोन एंड क्विनोन, then platinum wire डीप करना है. so mercury और KCl saturated solution. so E cell is equal to E quinhydron minus E calomel. so we have already knows that E quin minus E calomel हमने क्या लिया है, 0.505916 pH माइनस, सॉरी इक्विन हाइड्रोजन हमने क्या लिया है, इक्विन हाइड्रोजन इज इक्वल टू इक्विन हाइड्रोजन 0 E0 क्विन हाइड्रोजन माइनस 0.05916 pH एंड ई कैलोमल इलेक्ट्रोड इज एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दिया. सो ये कहा क्या आएगा, 0.699 हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा. इक्विन E0 क्विन हाइड्रोजन कितना लिया हमने, 0.699 माइनस 0.05916 pH माइनस कैलोमल इलेक्ट्रोड का कितना होता है पोटेंशियल, 0.242. दैट यू हैव टू लर्न दिस. ई कैलोमल इलेक्ट्रोड का कितना ऑर्डर, 0.242. सो ई सेल इज इक्वल टू इन दोनों का 0.699 माइनस 0.242 माइनस करने के बाद कितना आया आंसर, 0.457 माइनस ये हमने एज इट इज लिख दिया 0.05916 pH. सो pH मतलब ये pH इज इक्वल टू ये 0.457 माइनस ई सेल डिवाइड बाय 0.05916. तो ये pH क्या है, निगेटिव था, सो वो वहां पर गया, इधर निगेटिव था तो ऊपर लिया तो वो पॉजिटिव हो गया. तो ई सेल यहाँ पर कैसे निगेटिव हो गया यहाँ पर आने की वजह से. देन ये हमने क्या किया यहाँ पर, मतलब एक स्टेप हमने स्किप किया है और डायरेक्टली हमने वहां पर डायरेक्ट लास्ट स्टेप मतलब आपका एक आंसर लिखा है. तो दैट इज द इक्वेशन 4. सो इन अल्कलाइन मीडियम द सेल सेटअप इज प्लेटिनम. अल्कलाइन मीडियम में कैसे होता है, प्लेटिनम माइनस H2QQ हाइड्रोक्विनोन क्विनोन, H प्लस KCl, देन Hg2Cl2 एंड Hg, मतलब उल्टा करते हैं हम यहाँ पर, जैसे पहले इसमें लिया था एसिडिक मीडियम में उसका ही उल्टा हम यहाँ पर कर रहे हैं. सो ई सेल इज इक्वल टू ई कैलोमल माइनस ई क्विनहाइड्रोन. अभी यहाँ पर हम उल्टा कर रहे हैं, वहां पर ई क्विनहाइड्रोन माइनस ई कैलोमल किया था, यहाँ पर हम क्या लेंगे, ई कैलोमल माइनस ई क्विनहाइड्रोन. सो ई कैलोमल कितना है, 0.242 हमको पता है अभी ये. देन ई क्विनहाइड्रोन कितना है हमने यहाँ पर निकाला है, ये 0.699 माइनस 0.05916 pH. सो 0.242 माइनस 0.699, ये माइनस माइनस का प्लस हो गया यहाँ पर,
तो ये यहाँ पर क्या लिखा प्लस, सो 0.05916 pH। तो देन हमने फिर से यहाँ पर दोनों को अभी प्लस, दोनों का माइनस 0.4242 माइनस 0.699 किया, तो उसका भी आंसर 0.457 आया, बट उसको माइनस आएगा बिकॉज ऑफ लार्जर 0.699 value is larger than 0.242, so larger sign is value sign is given here, so plus 0.5916। तो यहाँ पर भी pH हमने pH is equal to E cell plus 4.457 डिवाइड बाय 0.5916, मतलब ई सेल का क्या हुआ यहाँ पर ई सेल है, ये ई सेल है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमने एक डायरेक्टली एक स्किप कर दिया है ई सेल, ये ई सेल है, ये ई सेल है, ई सेल इज इक्वल टू 0.457 प्लस 0.05916 pH। सो हमने ई सेल, ये यहाँ पर जाने के बाद प्लस होगा, देन ये यहाँ पर नीचे जाने के बाद, ये यहाँ पर जाने के बाद वो नीचे जाएगा, ये जो वैल्यू है, सो pH इज इक्वल टू, ये यहाँ इस साइड में जाएंगे सभी। सो यहाँ पर हमने डायरेक्टली यहाँ पर एग्जाम आंसर लिखा है, pH इज इक्वल टू ई सेल प्लस 0.457 डिवाइड बाय 0.05916। so this is the equation of first acidic in alkaline media. So the function of the electrode is totally depends on assumption that the ratio of activity of Q divided by activity of S2Q remains equal to 1। ये किस पर फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड डिपेंड करेगा, हम एजम्पशन कर रहे हैं दैट इज द क्यून हाइड्रोन इलेक्ट्रॉन एंड क्यून हाइड्रोन एंड हाइड्रोक्यूनन इक्वल टू द 1। any factor that affects this ratio and deviates it from unity can also affect the functioning of the electrode। so कोई भी अगर कोई भी फैक्टर इस पर अफेक्ट करेगा, इस रेशियो पर, मतलब 1 नहीं आएगा, तो it form a unit deviates it from unity can also affect the functioning of electrode, मतलब फंक्शनिंग इलेक्ट्रोड का फंक्शनिंग ही वो अफेक्ट करेगा। the potential of the queen hydrogen electrode to some extent is affected by presence of salt or even a non electrolyzed। so potential of queen hydrogen electrode का किसकी वजह से इफेक्ट कर सकता है, because of presence of salt or non electrolytes उसमें प्रेजेंट हुआ तो। so now the merits of this one, so merits of this hydroquinone and potential quinone का, the electrode is easy to set up and work with। so merit क्या है, easy to set up and work, उसके साथ इजी है हमको वर्क करना एंड सेटअप करना भी। सो द इलेक्ट्रोड कैन फंक्शन सेटिस्फैक्टरीली आल्सो इन हाईली एसिडिक सॉल्यूशन, अगर हाईली एसिडिक सॉल्यूशंस भी हुए तो भी वो क्या फंक्शनिंग सेटिस्फैक्टरी करता है। द इलेक्ट्रोड कैन बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ पीएच इवन इन नॉन एक्वियस मीडियम। सो इलेक्ट्रोड क्या है, यूज क्या यहाँ पर कर सकते हैं हम इसका, और मेजरमेंट ऑफ पीएच इवन इन नॉन एक्वियस मीडियम, इसका यूज हम नॉन एक्वियस मीडियम में भी कर सकते हैं, विदाउट एक्वियस मीडियम। सो दैट इज द मेरिट। एंड फोर्थ वन इज द इलेक्ट्रोड कैन बी यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट ऑफ दोज मेटल्स फॉर विच द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डज नॉट फंक्शन। सो ये इलेक्ट्रोड कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट ऑफ दोज मेटल्स फॉर विच हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डज नॉट फंक्शन, जहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स फंक्शन नहीं करते वहां पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। now the demerits, so which are the demerits? so first one is the electrode can function satisfactorily only in the pH range of 1 to 8। इसका क्या है मेन डिमेरिट, ये pH रेंज 1 to 8 में ही सेटिस्फैक्टरली फंक्शनिंग करता है, मीन्स ये 8 के बाद भी नहीं दिखाएगा, ये 1 के पहले भी नहीं अच्छा फंक्शनिंग दिखाएगा। with solution of pH greater than 8 the activity ratio no longer remains equal to 1। अगर उसका pH greater than 8 हुआ तो वो activity ratio equal to 1 नहीं दिखाता। in alkaline solution the solubility of hydroquinone, it being a phenol, increases whereas that of quinone remains unchanged।
मतलब अल्कलाइन सॉल्यूशंस में क्या होता है, सोल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्विनोन इट बीइंग अ फिनॉल इंक्रीजेस, फिनॉल की वजह से उसका हाइड्रोक्विनोन का इंक्रीज हो रहा है सोल्युबिलिटी, बट क्विनोन का अनचेंज हो रहा है। इसकी वजह से मोर ओवर इन अल्कलाइन मीडियम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोक्विनोन टू क्विनोन। सो ऑक्सीजन जो भी एटमॉस्फेयर में है वो क्या करेगा, हाइड्रोक्विनोन को क्विनोन में रिप्लेस करेगा एंड अल्टर द रेशियो ऑफ द टू, मतलब दोनों का रेशियो चेंज हो जाएगा, फिर एक का ज्यादा बढ़ जाएगा एक कन्वर्ट होने की वजह से दूसरे में, सो एक का पूरा कम हो जाएगा। So last is the electrode cannot function in the presence of oxidizing and reducing agents that can react rapidly with the either hydroquinone or quinone. So electrode किस में function नहीं करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स जहां पर हो गए प्रेजेंस हो गए वहां पर भी ये रैपिडली नहीं करता है। So thank you students, we have completed, we are here completed the hydroquinone indicator electrode of quinohydron electrodes, and in next lecture we are studying next electrode. So thank you.